قدیم مصر سے ایک طبی مت موجود ہے، ایک حقیقی زندہ بچ جانے والا پیپرز جس میں یہ نسخہ موجود ہے جو 1550 قبل مسیح میں لکھا گیا تھا۔ جس دن آپ کھڑے ہو اس سے 300 سال پہلے روٹی جو ڈھلی ہو چکی ہو شہد کے ساتھ پیس کر زخم پر روزانہ 2 بار لگائیں۔ یہ ایبس پپائرس سے ہے جو انسانی تاریخ کی سب سے اہم طبی دستاویزات میں سے ایک ہے۔ یہ اسی طرح کی درجنوں نصوص میں سے ایک ہے۔ یہ متاثرہ زخموں کے علاج کے لیے ایک حقیقی نسخہ ہے، اور وہ حصہ جو سٹون میسن کے دائیں ہاتھ پر گہرا کٹ ہے۔ 2 دن پہلے جب ایک چھینی پھسل گئی جب وہ نئے مقبرے میں نوشتہ کندہ کر رہا تھا، زخم ابلنے لگا ہے۔ یہ کناروں کے ارد گرد سرخ نظر آنے لگا ہے۔ اسے بخار ہے، اعتدال پسند، ابھی تک خطرناک نہیں لیکن چڑھنا۔ آپ زخم کا معائنہ کرتے ہیں، آپ اسے سونگھتے ہیں۔ مصری ڈاکٹروں کو تشخیص کرتے وقت 5 حواس کا استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے، بشمول سونگھ، کیونکہ بعض انفیکشنز قابل شناخت بو پیدا کرتے ہیں۔ اس زخم سے پیپ کی بو آتی ہے لیکن گرنے کی نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے۔ آپ ولو چھال کے سرکہ سے زخم کو صاف کریں۔ باق جس میں قدرتی مرکب ہے جس سے بالآخر اسپرین حاصل کی جائے گی، مصری طب میں کم از کم 400 سالوں سے درد، بخار اور سوزش کے علاج کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ آپ شہد اور گراؤنڈ میوے کا پولٹیس لگائیں۔ شہد اب جانتے ہیں، اگرچہ جدید اصطلاحات میں نہیں، قدرتی طور پر اینٹی بیکٹیریل ہے۔ اب تازہ کپڑے میں ہاتھ لپیٹیں۔ آپ اسے چمڑے کی ڈوری پر ایک چھوٹا سا تعویذ دیں، دیوی سیکمیٹ کی ایک چھوٹی منگیتر شخصیت جو بیماری اور شفا کو کنٹرول کرتی ہے اور اسے 7 دن تک پہننے کو کہتی ہے۔ آپ اسے ڈھیلی روٹی کا نسخہ بھی دیں۔ آپ اسے تیار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ اسے روزانہ 2 بار لگانے کو کہیں۔ وہ اس وقت پڑھنے والی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، پیلا نظر آ رہا ہے لیکن راحت محسوس کر رہا ہے۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں، ارنامی عورت جس کا اپنے پچھلے سال ہاضمے کی شکایت کے لیے علاج کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، تم مسکراؤ۔ مصری طبی پریکٹس تمام صدیوں کے تمام طبی طریقوں کی طرح رشتوں کے اعتبار سے اتنا ہی ایک ساتھ رکھا جاتا ہے جتنا علاج کے ذریعے۔ آپ اس سے فیس وصول کریں۔ فیس پیسے میں نہیں ہے۔ پیسے نہیں ہیں۔ وہ آپ کو بیئر، 2 بڑے جار اور بچے کی پیدائش کے گھریلو خدا گار بیز کے چونے کے پتھر کے چھوٹے مجسمے کا وعدہ کرتا ہے جب اس کی بیوی اپنا موجودہ حمل ختم کر لیتی ہے۔ آپ متفق ہیں؟ وہ چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے اگلے مریض سے پہلے اپنے ہاتھ صاف پانی کے بیسن میں دھو لیں۔ مصری ویسے ہاتھ دھونے کے جنونی ہیں۔ طبی نصوص اس بات پر واضح ہے۔ آج آپ اسے 40 بار کریں گے۔ یک کے بعد دیگرے 2 مزید مریض آتے ہیں، ایک عورت جو دائمی سر درد میں مبتلا ہے جس کا علاج آپ ولو کی چھال، پیپرمنٹ اور تازہ مچھلی کے گوشت کے مرکب سے اس کے مندروں پر لگاتے ہیں۔ وہ 6 ماہ سے آپ کے پاس آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ 7 سال کا بچہ جسے اس کی ماں انفیکشن زدہ کان لے کر آئی ہے، آپ اسے گرم پانی اور شہد سے سیراب کریں، انہیں دوسری ہدایات دیں، گھر بھیج دیں۔ اور دن آپ کھاتے ہیں روٹی، لیٹش کا ایک سلاد، کھیرا اور پیاز، زیتون کے تیل، سرکہ اور نمک کے ساتھ ملبوس ان کی ہوئی مچھلی کا ایک چھوٹا ٹکڑا، 1 کپ بیئر۔ آپ اپنے گھر کے پیچھے چھوٹے سہن میں اکیلے کھانا کھاتے ہیں۔ آپ باہر گلی میں بچوں کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ آپ کہیں گدھے کی شیخی مارتے ہوئے سنیں۔ اپنے دور سے محلے کے ایک چھوٹے سے مندر میں پجاریوں کا موقع سنا۔ اوپر دوپہر اب کا 4تھا مریض آ گیا ہے۔ یہ مشکل ہے۔ وہ 4 آدمیوں کی طرف سے اٹھائے ہوئے کوڑے پر اب کے پاس لایا گیا ہے۔ خف شوہر اس کے پاس سے چلتا ہے، اس کا چہرہ سفید، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ ایک نوجوان عورت ہے، شاید 20 سال کی ہو۔ اس کا نام جب شوہر آخر میں اسے بول سکتا ہے۔ وہ 2 دن سے درد زے میں ہے۔ ان کے گاؤں کی دائی نے وہ کر دکھایا جو وہ کر سکتی تھی۔ اسے آپ کے پاس لایا گیا ہے کیونکہ دائی کو ڈر ہے کہ بچہ مر رہا ہے۔
दाया ठीक कहती है। तुम उसकी जांच करो। तुम इससे नरमी से बात करो। वो बमुश्किल होश में है। जिस शौहर का नाम नंगा है, इसकी उम्र 23 साल है। वो इसका हाथ थामे हुए है। वो 2 दिन से इसका हाथ पकड़े हुए है। इसका अपना हाथ दबाव से सफेद है। बच्चे की पोजीशन गलत है। अब के वक्त में अब से 3275 साल पहले ये एक मसला सीजरीन सेक्शन के जरिए हल किया जाता है। ये तरीक़ाकार 1200 और माँ के लिए मौत। अब के पास वो इख्तियार नहीं है। अब के पास जर्राही से मुतालिक एनेस्थीसिया नहीं है। अब के पास एंटीबायोटिक्स नहीं है जो इस इन्फेक्शन को महदूद कर दें जो वो पहले से तैयार हो रही है। अब के हाथ हैं अब दर्द के लिए पोस्त के जूस की एक छोटी बोतल की तरबियत दे रहे हैं और 7 सदियों की मिस्री ज़चगी की मश्क के बारे में जमा इल्म मश्क जो कदीम आलमी मेयार के मुताबिक है कहीं भी सबसे ज्यादा नफीस। ये काफी नहीं है। अब 3 घंटे गुजारते हैं। अब बच्चे को मोड़ने की कोशिश करते हैं। अपना काम हो जाते हैं। अब दोबारा कोशिश करते हैं। अब दोबारा नाकाम हो जाते हैं। आप अपने हाथों की छोटी छोटी हरकतों के साथ आहिस्ता आहिस्ता तीसरी बार कोशिश करते हैं। इंतजाम कर सकते हैं। बच्चा मुड़ता है। अब इसकी रहनुमाई करें। शौहर नमाज पढ़ रहा है। उनके साथ आने वाली दाई ने औरत का दूसरा हाथ पकड़ रखा है। अपनी थकन और दर्द में खामोश नॉडिचमेंट अब खामोश है। सिर्फ इसकी सांसें आपको बताती हैं कि वो अब भी वहां है। बच्चा पैदा होता है। बच्चा जिंदा पैदा होता है। एक लड़की। छोटा नीला लेकिन सांस लेने वाला। तुम इसे दाई के हवाले कर दो। दाई इसे गर्म करने, इसे साफ करने, इसे लपेटने का काम शुरू करती है। खामोश जिंदा नहीं है। खून बहना बंद नहीं होता। आप हर वो चीज आजमाते हैं जो आपको आजमाने की तरबियत दी गई है। आप उन चीजों को आजमाते हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ पढ़ा है। आप अपनी ईजाद करदा चीजों को मौके पर ही आजमाते हैं। इसमें से कोई भी काम नहीं करता। वो 1 घंटे में चली गई है। तुम बाद में शौहर के साथ बैठो। वो जवान है, इससे भी छोटा। 23 साल की उम्र आपको याद है। वो रोना नहीं रोक सकता। इसने बच्चे को पकड़ रखा है। बच्चा जिंदा है। बच्चे का नाम मतनोदुज मैट रखा गया है। रवायत के मुताबिक इसकी मां के नाम पर मौत के फौरन बाद शौहर इससे सरगोशी करता है। पहली बात जो इसने कभी इससे कही, आपको अपनी पट्टियों में रोकना ये है। ये काम करता है। ये काम करता है क्योंकि सही हालात में बासी रोटी पर उगने वाला सड़ना एक कदीम शक्ल में एंटीबायोटिक मुरक्कब पैदा करता है जिसमें बाज़ औक़ात पीनस्लीन भी शामिल है। मोल्ड की वो जेनिस जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में लंदन की एक लेबॉर्ट्री में अब से 3478 साल पहले पीनस्लिन को अलग कर देगा। जानते थे कि ये काम करता है। उन्होंने इसका मुशाहिदा किया था। उन्होंने इसे लिखा था। वो इस्तेमाल किए गए थे। आप नहीं जानते कि इसे क्या कहना है। मिस्री तिब्बी तरबियत आपको ये नहीं सिखाती कि क्या कहना है। अपने देर तक इसका हाथ पकड़ रखा है। तुम नहीं बोलते। इसे जाने वाली दाई भी इसके साथ बैठती है। दोपहर की रोशनी धीरे धीरे फर्श पर चलती है। बाहर बच्चे अभी तक गिल्ली में खेल रहे हैं। गधे अभी तक बुराई कर रहे हैं। दुनिया ने तवज्जो नहीं दी। आखिरकार वो बच्चे को लेकर चला जाता है और लाश दरिया के पार अपने गांव वापस ले जाती है जहां मैयत को तदफीन के लिए तैयार किया जाएगा। एक छोटा सा मामूली ममिफिकेशन, क्योंकि ये खानदान अमीर नहीं है, लेकिन एक हकीकी क्योंकि हर मिस्री जो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है मगरिब के सफर के लिए तैयार रहना चाहता है। आप अपने हाथ धोते हैं। आप उन्हें दोबारा धोते हैं। आप कांसी के आलात को धोते हैं। आप घरेलू मज़ार पर एक छोटा सा नजराना पेश करते हैं। रोटी का एक टुकड़ा, बियर का एक प्याला, आइसिस के लिए सरगोशी में दुआ करते हैं। वो देवी जिसने अपने ही शौहर को दफन किया था और जिसे मिस्री मानते हैं, वो गम को इस तरह समझती है जैसे कोई दूसरा देवता नहीं करता।
शाम में घर जाते हैं, थीबस की गलियां खाना पकाने के धुएं और जिंदगी की आवाजों से भरी हुई है। बच्चे खेल रहे हैं, औरतें पुकार रही हैं। सहन के सहन में एक दूसरे से एक आदमी कहीं एक पुराना काम गा रहा है। आप रात का खाना अपनी बीवी के साथ खाएं। आप ज्यादा नहीं कहते। वो जानती है। आप पहले भी ऐसे ही घर आए हैं। वो नहीं दबाती। वो आपको शराब डालती है। जब आप खाते हैं तो वो आपके साथ बैठती है। तुम छत पर जाओ। सितारे निकल आते हैं। आसमानी नील के तीर अंदाज आसमान से उफुक तक। आप इस औरत के बारे में सोचते हैं जो आज दोपहर फौत हो गई। तुम उसके बच्चे के बारे में सोचो। आप अपनी बेटियों के बारे में सोचें जो दोनों अपनी पैदाइश से बच गईं, और अपनी बीवी के बारे में जो शादी के 30 साल बाद भी जिंदा है। जो है ये खुद साख्ता शुमारियाती मौजिज़ा है। आप सरगोशी में दुआ करते हैं। मिस्रियों के पास मरने के लिए दुआ है जो नक्ल हरफी से शुरू होती है। मैं हीतप हूं। मैं मार खारो हूं। मैं हीतप हूं। उन कुत्ती। आप से निकलें और देवता मगरिब में आपका इस्तकबाल करें। आप इसे के लिए कहते हैं जिसका आपने अपने पकड़ा है। तुम आखिर सो जाओ। आपकी बीवी आपके पास है। इसके पास शहर खामोश है। ये कदीम मिस्र में 7 में से 6 दिन था। तबीब कदीम दुनिया की जदीद तरीन तिब्बी रवायात में से एक आदमी ढली रोटी और विलो की छाल और शहद और जचगी की तकनीकें बाकी दुनिया में 2000 साल तक मुमासिल नहीं होंगी। और एक नौजवान औरत जो बहरहाल मर गई क्योंकि दवाई की हमेशा हद होती है, और डॉक्टर के काम में हमेशा उन लोगों के साथ बैठना शामिल होता है जिन्हें बचाया नहीं जा सकता था। कल 7वां दिन हमारी सीरीज का आखिरी दिन। अब सिर्फ एक शख्स नहीं होंगे, कल अब सब होंगे। किसान, मकबरा बनाने वाला, पुजारी, ताजिर की बीवी, सिपाही। पोजीशन अब सब 6 एक ही सुबह को एक ही हुजूम में एक ही सोने के मुजस्समे को थीबस की गलियों में एक मुक़द्दस कुश्ती में ले जाते हुए देख रहे थे। कदीम दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार, जिस दिन पूरी तहजीब काम करना छोड़ देती है, जिस दिन ओपेट का त्यौहार हर मिस्री को एक वक्त में एक मुश्तरका लम्हे के लिए एक जगह ले आता है। दिन 7 नीचे की तफसील में फाइनल टाइम वार्पस शहरों को देखने का शुक्रिया। अगर आपने 6 दिन का लुत्फ उठाया तो सब्सक्राइब को दबाएं ताकि आप फाइनल से महरूम ना हो। एक तबसरा छोड़ें। मिस्री अद्वियात के बारे में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने हैरान किया? हमेशा की तरह हम आपको माजी में देखेंगे। ये रोजाना। आज कदीम मिस्र में 7 के 6 दिन अब एक मिस्री डॉक्टर हैं, और ढली रोटी का इलाज अब के शेल्फ पर ज्यादा आम चीजों में से एक है। ये हमारी सीरीज में 6 है। दिन 1 अब एक किसान है। दिन 2 एक मकबरा बनाने वाला। दिन 3 एक पादरी। दिन 4 बीवी के तौर पर एक तिजारत। दिन 5 मशरकी सहरा में एक सिपाही। आज अब चोरों में एक खामोश तरफ सड़क पर एक छोटे से 2 मंजिला घर में जागते हैं। आपकी उम्र 46 साल है। आप अपने पड़ोस के सबसे मुअज़्ज़ज़ मर्दों में से एक हैं, और आपके करियर के मुश्किल तरीन दिनों में से एक है। आसार कदीमा के शवाहिद और तारीखी रिकॉर्डों पर तरबियत याफ्ता AI का इस्तेमाल करते हुए हमने कदीम मिस्र में 7 दिन दरहकीकत कैसा लगता था। आज दवा जादू और 1250 कब्ल मसीह में एक डॉक्टर किया कर सकता था और किया नहीं कर सकता था के दरमियान पुतली लकीर। आइए 3275 साल पीछे चलते हैं। जरूर आप अपने सोने के कमरे में जागते हैं, इकेट और एटम नामी गिल्ली में एक छोटे लेकिन अच्छी तरह से रखे हुए मकान की बालाई मंजिल का उफुक एक मंदिर टोस्ट के नाम पर रखा गया है। सड़कों पर कमरा फालतू है, एक हकीकी बिस्तर जिसकी टांगों पर बने हुए गद्दे के गद्दे हैं। बिस्तर के दामन में कपड़ों के लिए लकड़ी का एक छोटा सा संदूक, एक सरकंडे का शेल्फ जिसमें कुछ ज़ाती सामान रखा हुआ था, एक तांबे का उस्तरा, एक पालिश शदा कांसी का आईना,
मिर्सिंटेड तेल का एक छोटा सा प्याला जिसे आप रोजाना सुबह अपने चेहरे पर लगाते हैं, और देवी तबके का एक लकड़ी का मुजस्समा, वो शेर जिसने आपकी वालिदा की बीमारी का इलाज मुकम्मल किया और आपको इस दिन का इलाज करवाने पर मजबूर किया। तरबियत आप अपनी बीवी और अपनी दो बड़ी बेटियों के साथ नाश्ता करते हैं, जो दोनों अपने खानदानों के साथ करीब ही रहती है। आपकी बेटियां आज सुबह आई हैं, जैसा कि वो अक्सर अपने बच्चों आपके पोते पोतियों के साथ दिन के पहले खाने के लिए करती है। रोटी, नरम पनीर, एक नरम उबला हुआ अंडा, एक मुट्ठी भर अंजीर, बड़ों के लिए बियर, बच्चों के लिए दूध। बावर्ची खाने बुलंद और गर्म है। आपकी बीवी जिसका नाम हीनो तवी है, इसकी उम्र 52 साल है। आपकी शादी को 30 साल हो चुके हैं। ईमीटर जब वो आपके आका से मशवरा करने आई थी, जिस पुराने मुआलिज अब ज़ेर तालीम थे, एक दायमी खांसी के बारे में। इसने पहले किसी और से शादी की, तीसरे में बुखार से उनका इंतकाल हो गया। शादी का साल, इसके 2 साल बाद तुमने इससे शादी की। आपकी बेटियां हयातियाती तौर पर आपकी नहीं हैं। आप उन्हें बहरहाल उठाएंगे। आप उनसे इस तरह प्यार करते हैं जैसे आप अपने खून की बेटियों से प्यार करते हैं, जिसका मुकम्मल तौर पर कहना है 1250 कब्ल मसीह में मिस्री कानूनी लिहाज से हयातियाती और गोद लिए हुए बच्चों में फ़र्क नहीं करते। आप जिस बच्चे की परवरिश करते हैं वो आपका बच्चा होता है। एक ही लफ्ज़ बेटे के लिए, बेटी के लिए बैठा दोनों मज़मून का अहाता करता है। सौतेले बाप के लिए मिस्री लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि किरदार को लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। आप खाते हैं, आप अपने पोतों को चूमते हैं, अब ग्राउंड फ्लोर पर अपने दफ्तर जाते हैं। आपका दफ्तर छोटा है, एक लकड़ी की मेज़, एक कुर्सी, मरीजों के बैठने के लिए पढ़ने की चटाई, एक दीवार के साथ शेल्फोहे का एक सिलसिला जिसमें मिट्टी के बर्तन, पेपर्स, रोल्स और कांसी के आलात हैं। मेज़ के ऊपर एक सेकंड छोटे शेल्फ में ईबस पपायरस की आपकी ज़ाती कापी, 44 सफ़हात पर मुश्तमिल स्क्रोल, मुकम्मल तौर पर उतारे जाने पर 2.5 मीटर लंबा होता है। कर्सिव हाइरीटुक स्क्रिप्ट में अहाता करता है। ये आपकी तिजारत की किताब है। आपने इसे पढ़ा है 7 बार का अहाता करने के लिए। आप मुंदरजात की मेज़ को दिल से पढ़ सकते हैं। आधी सुबह आपका पहला मरीज आता है। वो डायर अल मदीना से पत्थर का मैसन है। हाँ, दरिया के इस पार वही गांव जहां आपने दूसरा दिन गुजारा, और वो आपको देखने के लिए 1 घंटा पैदल आया है। इसका नाम पहर पैडिये है। वो है, आप फौरी तौर पर नोट करें, वो आदमी जिसका नाम आपके मरीजों की फहरिस्त में जाहिर होता है, जैसा कि गांव के मकामी डॉक्टर ने कहा है। एक मकामी डॉक्टर आपके एक साथी ने इसे इसलिए भेजा है क्योंकि केस गुजर चुका है, जिसे वो आराम से हैंडल कर रहे हैं।